State of Uttar Pradesh has been a model state for growth and development, especially in infrastructure sector. It has become a role model for many of the states in India, and overseas also it's being looked as one model state. But what goes in the whole story, and how's the overall situation looking like when we talk about the future? Today we will talk all that and much more with Mr. Alok Kumar, Principal Secretary, Industry Development and Infrastructure of UP Government. Thank you, Mr. Kumar, for talking to us. Thank you, Sumit. Let's begin by talking about Uttar Pradesh being an Uttar Pradesh now. When we talk about infrastructure development, just tell us, how has that been made possible, and how will you continue these efforts in future as well? So we like to call ourselves as the land of unlimited potential. There's a lot of potential which needed to be tapped. We are tapping it, and we are growing exponentially. So unfortunately, Uttar Pradesh 7-8 years back was saddled with a negative perception. Despite demographics, despite growth rates, it was possibly on the law and order front, possibly on the governance front, and on investor friendliness. In all those things, there was somewhat a negative perception. But what I see today when I interact with my colleagues in other states, when I interact with different investors, the perception seems to have been almost changed 180 degree. It is now seen as proactive, it is now seen as pro-investor, it is now seen as business friendly. And what all went to make this? I will just like to mention 4 or 5 points that this led to this 180 degree shift in the paradigm. First is decisive action on law and order. This completely changed. The second is a lot of investment in infrastructure, long-term projects with long-term gains. So today, UP is the state with the maximum kilometerage of expressways. It is the land with largest network of the freight corridor, the railway freight corridor. It is the state with the largest number of airports. There are 21 operational airports, of which 5 are international. So that was one part. So logistics hubs are coming up at different places to enable businesses. We are the first of the waterways is also passing through on the Ganga. So land, water, air, roads, connectivity, we have just changed the paradigm in the last 7-8 years. So that is one major shift why people are now, or the perception of Uttar Pradesh has changed. The other thing is the institutional governance. So investors did not find it a very welcoming place. So with the setting up of Invest UP, with the GIS, with UP International Trade Shows, there's a large effort which the government, and a conscious effort which the government has put in to set up an institutional infrastructure that would respond to the investors at a time and day and hour of their choosing, rather than a time and day and hour of the government's choosing. So these three, I think, has been the key changes that has led to this dramatic change in perception. And as you question, I will also mention a few results that has come out of it and what we expect in the future. So it wouldn't have happened without ease of doing business. यानी भी ease of doing business में आपने काफी काम किया है. So क्या बातें आपने रखी दिमाग में जब आपने ease of doing business की तरफ काम करना शुरू किया? तो अगर आप देखें तो भारत सरकार ने ease of doing business का किया, और वो लार्जली इसलिए किया क्योंकि इंडिया काफ़ी पीछे था. ईज ऑफ 125वें स्थान पे था, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली. और तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल दिया था सभी लोगों को कि इंडिया को इम्प्रूव करना है, और इंडिया को इम्प्रूव करना है बिकॉज इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स, ईच स्टेट हैज़ टू डू. वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है. तो एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बनाया गया कि भाई किन किन एरियाज में इन्वेस्टर्स को सिस्टमैटिकली एक करके वो बनाया गया. और उसमें 3 मूल मंत्र थे. एक था डीक्रिमिनलाइजेशन. बहुत सारे हमारे ऐसे कानून हैं जिसमें छोटी छोटी, जैसे फॉर इंस्टेंस फैक्ट्री एक्ट में एक प्रोविजन ये है कि अगर 6 महीने में आप फैक्ट्री नहीं कर पाए, पेंट नहीं करते हैं, तो आपको 6 महीने का जेल हो सकता है. अब
हमारे लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट बाहर से जो इन्वेस्टर आता है उनको लगता है कि इतने ड्रैकोनियन प्रोविजंस है, तो डीक्रिमिनलाइजेशन, तो जहां पे सिविल फाइन्स के साथ मैटर को सॉर्ट आउट किया जाता, वहां क्रिमिनल पुलिस कोर्ट्स जाने की जरूरत इन्वेस्टर्स को ना पड़े। तो ऐसे हमने तमाम प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया, एक वो काम था। दूसरा था रैशनलाइजेशन, यानी कि क्या इतने क्लियरेंसेस की रिक्वायरमेंट है क्या। जैसे मान लीजिए कि कई बार अलग अलग एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से आप ये फॉर्म भरो, आप ये फॉर्म भरो, आप ये फॉर्म भरो, और मुख्तलिफ अलग अलग जगहों से आपको दरवाज़ों पे जाना पड़ता है। तो एक हमने ये किया कि भाई कितनी क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड हैं, उन सबको रैशनलाइज करके, और एक डिजिटल फेस दिया हमने निवेश मित्र के फॉर्म में कि भाई आप सीधा यहाँ पे डालिए और आपको फिर कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बैक एंड पे सारा काम हमारा। और एक साथ में उसके एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप दिया जिसको हम इन्वेस्ट यूपी कहते हैं, कि हर एक इन्वेस्टर के हर एक क्लियरेंसेस को हम चेस करते हैं, वी इंश्योर। और आज की डेट में मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऑलमोस्ट 97% ऑफ द क्लियरेंसेज आर हैपनिंग विद इन द टाइम फ्रेम विच इज प्रेस्क्राइब फॉर इन दैट पर्टिकुलर रूल, या जो हमने सर्विस लेवल की गारंटीज हमने दी हैं इन्वेस्टर्स को, 97% क्लियरेंसेज हो रहा है। और जहां पे 2-3% डिले हो रहा है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी बनाई जा रही है कि लोगों को जिम्मेदार बनाया जा रहा है कि भाई आपके यहाँ ये विलंब क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। तो दूसरा पार्ट हो गया आपका रैशनलाइजेशन, और तीसरा पार्ट हो डिजिटलाइजेशन। तो हमारा जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग फैला हुआ था, उन सब को करके एक फ्रंट एंड हमने निवेश मित्र के फॉर्म में दिया, और बैक एंड प्रोसेसेस को भी हम फ्रंट एंड के साथ मिला रहे हैं, सो दैट द ट्रांजिशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, द बाउंड्रीज ऑफ डिपार्टमेंट बिकम्स इररेलिवेंट। वो बिल्कुल इन्वेस्टर के लिए इररेलिवेंट है, बिकॉज उसने तो बस उस एक वेबसाइट पे जाना है और वहां से उसने करना है। कुछ काम हो चुका है, लेकिन फुल इंटीग्रेशन का काम अभी हम लोग कर रहे हैं, और अगले 6 महीने में हम फुली इंटीग्रेट कर देंगे, सो दैट एवरी डिपार्टमेंट, क्लियरेंस ग्रांटिंग डिपार्टमेंट इज फुली इंटीग्रेटेड विद दैट निवेश मित्र पोर्टल, सो दैट अभी हम लोग को डिपार्टमेंट से मांगना पड़ता है कि भाई आपने कितने समय में किया, नहीं किया, उनकी रिपोर्टिंग आती है। अब हम लोग का क्या होगा कि रियल टाइम हो जाएगा सब कुछ। तो डिजिटलाइजेशन, rationalization, decriminalization, that was the first level. अब सेकेंड लेवल रिफॉर्म्स हम EODB, आपको याद होगा कि पिछली बार नवंबर में कदाचित प्राइम मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कॉल दिया कि भाई अब सेकेंड लेवल, अब टाइम आ गया है EODB 2.0 कटेगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर एक सेल बना है जो सेकेंड राउंड, उस मतलब जो पहले राउंड में हमने 3-4 सालों में कुछ किया, और अब दूसरे राउंड में हम फिर लग रहे हैं, और इसमें अब हम लोग कर रहे हैं लॉज के सिंप्लीफिकेशन। जो रिमेनिंग डी क्रिमिनल प्रोविजंस हैं जिनको हम डीक्रिमिनलाइज कर सकते हैं वो। दूसरा, एक जन विश्वास एक्ट ला रहे हैं जिसमें कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे में डीम्ड क्लियरेंसेस कर दें, आपको आने की जरूरत ही ना पड़े, बट अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो उसमें हैवी मॉनेटरी पेनल्टीज का हो जाएगा, सो दैट डिफॉल्टर्स कैन बी पनिश्ड ऑल्सो। और तीसरा, उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि जो हमारे लॉज हैं, जैसे मान लीजिए आप देखें सेटबैक के नॉर्म से, सेटबैक भी हम देते हैं, FAR भी देते हैं, पार्किंग स्पेस के भी नॉर्म देते हैं। तीनों की ज़रूरत नहीं है। अब हमने हाउसिंग डिपार्टमेंट ने मॉडल बिल्डिंग बाई लॉज निकाला है जो जल्दी ही नोटिफाई होगा, ऑब्जेक्शन के लिए अभी पब्लिक के पास है, कि आप ग्राउंड कवरेज कितना करते हैं हमें मतलब नहीं है, केवल फायर के हिसाब से आप सेटबैक छोड़ दीजिए और इतना FAR। तो बहुत सारे लॉज में जो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हमने क्रिएट कर दी थी, उसको सिंप्लीफिकेशन का काम ये EODB 2.0 में हो रहा है। और ये तो मैंने एक बताया, इसी प्रकार से लेबर में, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में, इसी प्रकार से लैंड यूज चेंज में, ये आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया है क्या क्या करना है, और हमारी एक टीम उसके ऊपर लगी हुई है। और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से 1 साल में हम लोग EODB 2.0 में भी काफी आगे काम करेंगे। कुछ स्टोरी या डेटा यू वुड लाइक टू शेयर, आप शेयर करना चाहेंगे जिससे इस जर्नी को आसान बनाया आपने, एंड यहाँ तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दैट हैज बीन मेड पॉसिबल? नहीं, मैं आपको सिर्फ हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। 2017 में या 16 में वी वेर
जो एक हमारी फैक्ट्रीज एक्ट, जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ऑल ऑफ देम नीड टू रजिस्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। 2016-17 में हम लोग 500 फैक्ट्रीज एक साल में रजिस्टर करते थे। आज वो आंकड़ा बढ़ के 4000 फैक्ट्रीज पर ईयर हो रहा है, और इस साल जो ये करंट फिस्कल है, मुझे उम्मीद है कि हम 6000 नए फैक्ट्रीज जोड़ेंगे एक साल में। तो आपको दिखाई देगा कि 7 या 8 साल में जो स्टेट 500 फैक्ट्रीज एक साल में जोड़ रहा था, अब वो 6000 फैक्ट्रीज। तो वी मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। गुड। तो बस इतना ही स्टोरी मुझे कहना, बाकी तो इंडिविजुअल बहुत सारी स्टोरीज है, मैं कहते कहते थक जाऊं। बट आज की बात करें आजकल की, तो स्टार्टअप्स एक नया थीम, मतलब नया थीम इन द सेंस की एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ जॉब क्रिएशन. What are you doing in that sector? Because that is something which for youth. स्टार्टअप इकोसिस्टम को चैनलाइज करने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है, लगभग हमारे सभी यूनिवर्सिटीज़ में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेशन सेंटर्स हम लोगों ने बनाया है, और सम ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर्स आर वर्किंग वेरी वेल। उनको फंड करने के लिए हमने सिडबी के साथ 100 करोड़ रुपए का फंड दिया हुआ है, और भारत, ये दिस इज इन अपार्ट फ्रॉम व्हाट भारत सरकार हैज डन। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा यूथ के पास बिजनेस आइडिया है, उसको कमर्शियलाइजेशन करने के लिए ना तो मेंटरिंग की सपोर्ट की कमी हो, ना फाइनेंशियल लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज की कमी हो, ना उनके पास प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ की कमी हो, ना उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की कमी हो। अब वो उनके एंटरप्राइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कर लेंगे। परंतु जो मैं देखता हूं, और वो कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, कि जिस लेवल का मूवमेंट हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिखा है, उस लेवल का मूवमेंट, बट उस गति का मूवमेंट अभी हमें सर्विसेज सेक्टर में नहीं दिखा है। और ये टाई अप करता है पूरा बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में इवन विदाउट इकोसिस्टम यू कैन डू अपने प्लांट के अंदर। सर्विसेज सेक्टर में इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि कम से कम हमारा जैसे एनसीआर रीजन हुआ, या हमारा लखनऊ का रीजन हुआ, जो जिसको अब स्टेट कैपिटल रीजन हुआ, फिर वाराणसी इलाहाबाद रीजन हो गया, कानपुर रीजन हो गया, इसमें हम इस इकोसिस्टम को कैसे करेंगे। फॉर इंस्टेंस आईआईटी कानपुर का अगर आप जाके देखेंगे, वहाँ का जो इनोवेशन इकोसिस्टम, दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब। जो डिफेंस कॉरिडोर हमारा बना है, डिफेंस कॉरिडोर में आप जानते हैं कि डिफेंस में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज प्रयोग होता है। तो जो डिफेंस यूनिट्स अभी स्थापित हो गई हैं, कई सारी चल भी गई हैं। ब्रह्मोस वाला 11 तारीख को आई थिंक राजनाथ सिंह जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। कानपुर में फील्ड गन फैक्ट्री चालू हो गई हैं, 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे पास पहले थी, अलीगढ़ में हमारी फैक्ट्रीज चालू हो गई हैं। तो अब एक यू सी स्टार्टअप इकोसिस्टम इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट इन अ वेकेंट। उनके लिए डिमांड भी तो होनी चाहिए। तो जब ये कंपनीज आएंगी, हाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लाएंगी, तब ये यूथ उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। सो मेरा ये कहना है कि वी हैव डन द ग्राउंड वर्क ऑफ क्रिएटिंग दिस बेस वेयर द डिमांड फॉर दीज सर्विसेज विल बी देयर। तो अब मुझे उम्मीद आ रहा है कि अगले 2-3 सालों में, और आपको ये भी ध्यान होगा कि जीसीसी पॉलिसी अभी हमने कल परसों कैबिनेट में पास किया है। तो ये जो जीसीसी कंपनीज आएंगी, दैट विल ऑल्सो गिव अ फिलिप टू द इकोसिस्टम, एंड दिस इज काइंड ऑफ, दे आर व्हाट यू कॉल, क्या शब्द उसको यूज करते हैं, सिम्बायोटिक विथ ईच अदर। So they have जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये भी बढ़ेगा, synergies ज़्यादा दे, दोनों में एक दूसरे में सिनर्जीज रहती हैं। तो the next 6 months we are going to make a very very strong push for the GCC sector, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा फ्लेजलिंग जो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है, that will वो परवान चढ़ेगा जैसे जैसे हम GCC के इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करें। So I'll talk about 2 things one by one. First is airport development. Infrastructure में अगर बात करें तो hardly any state in the whole world has done what UP has done for international airports. जेवर से लेकर आपके जो भी नए हमारे इंडिया में आ रहे हैं, mostly UP में आए हैं. So how do you see UP emerging as a model state when it comes to infrastructure and starting with airports here? सब आप देखें, यूपी जो है वो एक स्टेट नहीं है, वो एक देश भी नहीं है, वो एक कॉन्टिनेंट है।
25 करोड़ लोग, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्टिनेंटल डायमेंशन। और अगर आप बलिया से लें नोएडा तक, उधर सहारनपुर से लें ललितपुर तक, और इधर जालौन से लें उधर बलिया और देवरिया तक, अभी तक हम लोग सिर्फ रोड और रेल के ऊपर डिपेंडेंट थे। पिछले कुछ सालों में सो इट वाज, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसको हैमर किया कि विदाउट एयर कनेक्टिविटी देयर इज नो फ्यूचर फॉर यूपी, एंड देन दे वेंट आफ्टर इट। अंग्रेजों के ज़माने में जो वॉर एफर्ट्स में गाजीपुर में पट्टी है, आजमगढ़ में पट्टी है, गोरखपुर में पट्टी है, रायबरेली में कुछ छोटे, वो रायबरेली तो फुर्सतगंज की वजह से है, बरेली में था, मुरादाबाद में था, झांसी में छोटी पट्टी है, बट सब छोटी पट्टियां हैं। वो उस ज़माने के प्लेन्स के लिए बनी थी और उसके बाद फिर वैसे ही रहेगी। सो ही आइडेंटिफाइड ईच ऑफ दोज लोकेशन, एंड देन देर आर सम विच वेयर लाइक इंटरनेशनल। आगरा फॉर इंस्टेंस डिफेंस के पास था, बट इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट था। कुशीनगर, वो बिल्कुल नया एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड, बुद्धिस्ट टूरिस्ट बहुत आते थे। तो अब नेट रिजल्ट इस प्लानिंग का ये हुआ कि हमारे पास आज 21 फंक्शनल एयरपोर्ट है, 5 ऑफ विच आर इंटरनेशनल, 16 डोमेस्टिक, और अभी 7 पे और काम चल रहा है। So by the end of 2027, I think we would have about 30 operational airports. So going from anywhere to UP to anywhere to UP will not be more than 45 to 30 minutes. तो ये एक काम वो हुआ। दूसरा कि केवल एयर से तो सारा, you can transport people, but that is not very economical. Not everybody will be able to afford it. And plus you also need to transport freight. Freight meaning एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस हो सकता है, एंड ऑल्सो पीपल इन लार्ज नंबर्स। तो द सेकेंड थिंग वाज, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट एक्सपेंडिंग योर नेशनल हाईवे कैपेसिटी थी, हमारी स्टेट हाईवे की नेटवर्क थी, बट एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज पहला बनाया था 2007-8-9 में, जो नोएडा को आगरा से जोड़ता था। उसके बाद फिर आगरा से लखनऊ जुड़ा। Now we have a very large network of expressways, and we are building expressways at breakneck speed, and the idea is कि कोई भी गुड, कोई भी पेरिशेबल कमोडिटी, कोई भी थिंग एयरपोर्ट पे या ड्राई पोर्ट पे या फ्रेट कॉरिडोर के किसी नोड पे पहुंचाने में 4 से 5 घंटे से ज़्यादा लगे नहीं, किसी भी कॉर्नर ऑफ द स्टेट से 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं। That is the overall logistic plan, and then this transshipment facility, दो logistic hub, एक हम जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर क्रॉस करता है, जिसको हम बुड़ाकी कहते हैं, वहाँ पे हम एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बना रहे हैं, और एक हमारा बनारस में जो हमारा वाटरवे के अलॉन्ग की, कल को पोर्ट की तरफ, अगर कलकत्ते की तरफ हमारे, बिकॉज हमारी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वी आर अ डबल लैंडलॉक्ड स्टेट। तो और अगर आप देखेंगे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने प्रॉस्पेरिटी छोटे शॉर्ट टेन्योर में पाई है विदाउट डिपेंडिंग ऑन एक्सपोर्ट्स। यू कैन सी, एंड दिस इज समथिंग विच इज ऑन रिकॉर्ड। नाउ we are constrained because of the landlocked, so we have to get rid of this constraint. So how do you get rid of this constraint? One is either you have a very good waterway which reaches you up to the port, so you are working on that, or you have, for small commodities, you have airports which can air freight your goods, particularly perishable goods. And thirdly, you have the network of expressways and the freight corridor, so that चाहे आपको मुंबई के नावाशेवा पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है, या आपको इधर पारादीप या इधर हल्दिया पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है, you have a railway network which is dedicated to the container framework, and then the transshipment facility, so that जब छोटे ट्रक से कंटेनर में जाए और कंटेनर से फिर पोर्ट में जाए तो प्रॉब्लम ना हो। तो इस लार्जर ब्लूप्रिंट पे काम किया गया है। Some of it is now visible, some of it will be visible in the next 1 or 2 years. So I'll talk about a recent incident. In fact, Uttar Pradesh now is a role model when it comes to holding massive events. Last year Ayodhya happened, the temple opening, and this year Kumbh happened. It has not happened on this scale ever in the history of humankind.
in India, in Uttar Pradesh. So how did that become possible? Starting with the nitty-gritties of maybe you can give some points there. So, you see, एक उत्तर प्रदेश के, जैसा मैंने आपसे कहा कि देयर वाज अ नेगेटिव परसेप्शन, बट उत्तर प्रदेश के देयर वर सम इनहेरेंट एडवांटेजेस जो कि सारे भारतवासियों को पता थी, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश वासियों को भी पता थी, लेकिन हम उसको लेवरेज नहीं कर पाते थे इनटू इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द स्टेट। काशी आज से नहीं है, वहाँ अयोध्या आज से नहीं है, मथुरा आज से नहीं है, प्रयाग आज से नहीं है। जो हमारे सिविलाइजेशन का इथॉस है वो उत्तर प्रदेश में इवॉल्व हुआ है, लेकिन उस सिविलाइजेशनल एथॉस को तो लोग मानते हैं, लेकिन हाउ डज इट ब्रिंग बेनिफिट टू द कॉमन पीपल ऑफ द स्टेट, ये नहीं हमें समझ में आता था। एक्नॉलेज लोग करते थे कि हाँ जी यहीं पे उपनिषदों की रचना हुई, यहीं पे अधिकांश वेदों की रचना हुई। पठन पाठन में बनारस यूज्ड टू बी अ बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, बट हाउ डज दैट ट्रांसलेट इनटू economic benefits of the people? So this is what we addressed, and the revival of Kashi Vishwanath or the Ayodhya. Now we are working on the Braj and Mathura and Prayag Kumbh. So the point was it should be employed for the service of the common people. उनको कैसे फायदा होगा, उसके लिए हमें हाई पेइंग लोगों को अट्रैक्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना, एक तो हमारा प्रोडक्ट इतना सेलेबल होना चाहिए कि आज हर आदमी चाहता है एक ना एक बार विश्वनाथ में जाकर दर्शन करे, या राम मंदिर का, यहाँ से नहीं विदेशों से लोग आते हैं, मेरे पास कई सिफारिशें आती हैं कि साहब अयोध्या में दर्शन करना है, करवा दो। अब लोग आएंगे तो पैसे खर्च करेंगे, पैसे खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वो आएगा, एंड दैट इज वेयर। और कुंभ इस बार ऐसा हुआ कि दैट the government almost took it as a challenge to make sure कि it will be an experience which people should not forget, and that is how everybody coordinated. Preparation began a long time, and all the means and resources were deployed to ensure a massive congregation, a flawless experience, a digital experience of Kumbh. People, there's so many business models which, I mean, it is very fascinating. A whole city came up, all the sanitation arrangements, law and order arrangements, eating arrangements, then the whole akhada atmosphere. So now people want to have those kind of experiences. The only issue is how do you convert those experiences into the welfare and economic well-being of the people. That was the link that is now being sought to encashed. Last two quick questions I will ask you. First of all, in manufacturing now, it's quite a big achievement. 50% of mobile phones, they are made in UP. Companies like Samsung are there. So first of all, manufacturing, and second, FDI. What are you doing to attract FDI to the state? देखिए, एक बात ये समझिए कि the point that I would like to make to you is that not all states have advantages in all sectors. But what we consider UP's advantages are three major advantages, three sectors. Electronics is one. Leather, footwear, and textile and apparels. देखिए, हमें अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, वी हैव टॉक्ड अबाउट द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बूम ड्रीम फॉर यूपी, or goal for UP, not dream it, I will call it a goal for UP. It will be achieved on two parts, two sides. One part is gross value addition. So typically, how do you measure your output? What is the value added on the raw materials which you use for production? That is called the gross value added. So if your GDP has to grow high, your GVA has to be high. So electronics industry is an industry that we are targeting because it gives a very high value addition. Okay, but it doesn't
is not very employment intensive. Now, the other problem that we have, or advantage if you call it, if you look at it other way, is that we have a demographic advantage. Almost 65% of the state is in the working age population group. But they need to be provided jobs. So, on the one hand, we are targeting the GVA industries. On the other hand, we are targeting the employment intensive industries. And now, which are the employment intensive industries? Leather footwear, your non-leather footwear, then your textile and apparels. Huge amount of employment. Not very high paying employment, but a sustainable. So, they will not give you a very high value addition, but they will give you a lot of employment. So, our focus is to balance the growth, because we don't want very high economic status for some people and a very low economic status. That is, is a long-term, that is a strategy for a long-term disaster. So, we are balancing these two acts. On the one hand, if you look at Noida, we have not Noida, but the larger NCR region. We are looking at huge, we have already created a very good ecosystem for electronics manufacture. And as you said, a large number of 60% of the mobile phones are being manufactured there or exported from there. The electronic exports in the last 5 years has grown 5 times. It's growing that rapidly. And we have now a new electronic manufacturing cluster which we have sanctioned, which we have got, Government of India has sanctioned. After Tamil Nadu, UP is the second state to get that in the near and around the Xavier Airport. And we would be seeing a huge amount of investment there. So that will boost up my gross value added. And parallelly, we are now working on the employment intensive sectors, and the government in this budget has announced 10 textile parks and 2 leather parks, mega leather parks. And leather, when I say leather, because leather is now limited by the raw material that is available, but now people are moving to non-leather products. So, for instance, in footwear, sports shoes, etc., you'll see that you use the same shoes, but it is, instead of leather, it is the fabric or some such thing which is used to do that. So, you are likely to see, or you are going to see, a huge fillip in these 2 areas. And the goal is that while we have gross value addition targets in mind, we also have employment targets in mind. But Alokji, nothing is without challenges. So here, what challenges do you see in short term and long term also to all your goals, all your big plans? Are there challenges to them also? भाई आप ऊपर माउंट एवरेस्ट देखिए ना, चैलेंज देखने क्या, वो तो बीच में नदियां आएंगी, नाले आएंगे, वो तो चलता रहता है, वो तो हम लोग का डेली का काम है. So that's the thing. That's good. But हमें तो सिर्फ माउंट एवरेस्ट दिख रहा है. So that is the approach you are. पहुंचना है. It's the focus, one-sided. And we will reach there. We will reach there. That's good. That on that note, I will say thanks to you. Thank you so for giving your time to us and talking about Uttar Pradesh's journey of such a fabulous journey in infrastructure development. So much is happening here. Thank you again. Thank you, Sumit. It was a pleasure. Pleasure meeting you. Thank you.